हेलो बच्चों, वेलकम to standard 12th chapter number 10th vector algebra. In the previous lecture we are familiar with vectors and that algebra. We know what is vector, what is scalar, then types of vectors, then initial vectors, co-initial vectors, and their algebra, that is addition, subtraction, multiplication with a scalar. Now today we are discussing multiplication of vector to vector also. So there are two types of multiplication. This is 10.6 product of vector, and that the first product is what? Scalar or dot product. That dot product they have defined with a dot, and scalar means what? The answer is become a scalar. When product of two vectors the answer become a scalar, then it is called as a scalar vector. The definition is the scalar product of two non-zero vector a bar and b bar denoted by a bar dot b bar. This is then dot b bar equals that magnitude of a, magnitude of b into cos of theta, where theta is an angle between a bar and b bar. Suppose this is an a, this is an b bar, this is the angle theta. So angle must be lies between a bar and b bar, but there is a condition, what? Angle greater than or equals to 0, less than or equals to pi. That theta is gives the condition that what are the condition of two vectors. If theta equals to 0 means what? That two vector does not intersect each other. That is collinear vector. If the vectors are collinear, then theta equals to 0. So that a bar dot b bar equals to magnitude of a into magnitude of b. That is cos of 0 equals to 1. So two vectors are collinear. Condition 1. Two vectors are collinear. That vectors are collinear means what? Angle becomes 0. So the condition is what? The definition is a bar dot b bar equals to magnitude of a into magnitude of b into cos of theta, but theta equals to 0. Then cos 0 is equals to 1. So simply remaining magnitude of a into magnitude of b. Now collinear, when the two vectors are collinear, if vector lies between same, so a bar dot a bar is equals to what? Because this is a collinear, then that equals to what? Magnitude of a into magnitude of a, that is what? A square, magnitude of a square or simply a square. So किसी भी स्केलर का अगर स्क्वायर है तो आप इसे इस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं. इसी से हमारे पास बनते हैं i डॉट i, j डॉट j is equals to k dot k, that equals to magnitude of I square means what? 1 square, 1 square and 1 square, so that is equals to 1, because this is a normal, so that is a unit vector. Unit vector का square, that is 1. Magnitude of I is 1. Now this is the condition number 1, that vectors are collinear. Second condition is what? Condition number 2, vectors are perpendicular to each other. Condition 2, that vectors are perpendicular to each other. So theta equals to what? 90, because vectors are perpendicular to each other. Then perpendicular, ये यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका b है, but the angle is equals to what? 90 degree. Then that time a bar dot b bar, the definition says that first magnitude into second magnitude into cos of theta. What is theta? Theta is equals to 90 degree. Cos 90 is 0. 0 into something 0. So what? a bar and b bar का प्रोडक्ट होगा आपका 0. इसी से आपके पास ij के फॉर्म में बनता है that I cap dot j is equals to j dot k is equals to k dot I is equals to what? 0, because they are mutually perpendicular to each other. यहाँ पे ये आपको समझना है कि I डॉट I बनता है यहाँ पे आपका 1,
उसी वेक्टर को उसी से मल्टीपल कर दी जाए, प्रोडक्ट कर दी जाए डॉट प्रोडक्ट में, तो आपका आंसर आता है 1, और उसी के साथ में दूसरा वाला दी जाए j और k, तो आंसर बिकम्स 0. नाउ सम प्रॉपर्टीज आल्सो आर हियर. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? लेट वी डिस्कस. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास दैट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज a बार डॉट b बार प्लस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार. तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. a का अगर b के साथ में और c के साथ में b एंड c एडिशन में है, तब भी a डॉट b होता है प्लस a डॉट c होता है. उसी के साथ में अगर स्केलर में आ जाए तो लैम्डा ऑफ a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू डेट लैम्डा ऑफ a बार डॉट b बार, ये भी आंसर आता है, और a बार डॉट लैम्डा ऑफ b बार ये भी चलता है. तो लैम्डा इज अ स्केलर, हम किसी की जगह पे भी यूज कर सकते हैं. a को भी कर दीजिए, b को कर दीजिए, या a डॉट b का आंसर आने के बाद लैम्डा कर दीजिए, बिकॉज आंसर इज स्केलर. तो स्केलर से मल्टीपल में कोई फर्क पड़ता नहीं है. देन डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज a बार डॉट b बार इज इक्वल टू व्हाट, b बार डॉट a बार. कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है. a को b में और b को a में रिप्लेस कर दी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं. नंबर 4 है हमारे इसके साथ में आने वाला, दैट अब हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है a बार डॉट b बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा. देन इससे हमारे पास बनता है फार्मूला दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a बार डॉट b बार अपॉन ये इधर आए तो मल्टीपल, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. नाउ अब ये एक्चुअल वर्किंग कैसे होता है? तो वर्किंग के लिए हमारे पास ध्यान दीजिए कि इसी सपोज a इज इक्वल टू व्हाट, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k. दिस इज एन वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर a1 a2 a3 के फॉर्म में. एंड b बार इज इक्वल टू व्हाट, b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k. तो इन दोनों का डॉट, दैट इज a बार डॉट b बार क्या होगा? तो पहला वाला पूरा हमारा a1 i a2 j a3 k के साथ में डॉट में आएगा हमारे पास दैट b1 i b2 j b3 k. डॉट हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन में होता है, तो मतलब a1 को हम इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a1 i डॉट b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k प्लस a2 j. हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू व्हाट, b1 i b2 j b3 k प्लस a3 ऑफ k. हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू व्हाट, दैट इक्वल टू व्हाट, a1 i और उसके साथ में अब आएगा हमारा डॉट ऑफ b1 i प्लस a2 i और b2 j प्लस a1 i प्लस b3 k डॉट b3 k. सेम इसके लिए भी हम करेंगे प्लस में दैट a2 j डॉट b1 j i प्लस a2 j डॉट b2 j प्लस a2 j डॉट b3 k प्लस अब नीचे वाला इसके लिए भी हम करेंगे, दैट इज a3 k डॉट b1 i. ये बनता है हमारा फिर a3 k b1 i a3 k b2 j a3 k b3 k. नाउ हमारे पास प्रॉपर्टी थी दैट हम स्केलर को किसी भी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट अभी देखा था हमने, दैट प्रॉपर्टी नंबर 2
लैम्बडा ऑफ ए बार डॉट बी बार इक्वल टू हम लैम्बडा कॉमन निकाल सकते हैं, ए बार डॉट बी बार कर सकते हैं। इसी का यूज करके हम यहाँ पे अब करेंगे, देखिए यहाँ पे आई एंड जे का वेक्टर है और A1 B1 दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो हम अब कॉमन निकालेंगे, दैट इज व्हाट A1 B1 बाहर निकालेंगे, अंदर बचा हमारे पास आई डॉट आई प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, दैट A1 B2 और बचा अंदर हमारे पास दैट आई डॉट जे प्लस सेम अब बाकी का हम निकालेंगे। तो बचता है हमारे पास अब A2 B1 J डॉट ए, B2 B2 J डॉट जे, A3 B3 J डॉट के, सेम एज थर्ड वाले में क्या आएगा हमारे पास A3 B1 K डॉट आई, A3 B2 K डॉट जे, A3 B3 K डॉट के। ये सारे हमने लिखे। अब यहाँ पे देखिए आई डॉट आई, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है दैट आई डॉट आई हमारा होता है 1, आई डॉट जे अगर आई के साथ में कोई भी एक्स्ट्रा में आ जाए तो हमारे पास आए 0, हमने अभी पढ़ा है। इसके साथ में ये भी बनेगा हमारा 0, तो ये बन गया हमारा 1, ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 0, सेम एज ये बन गया 0, ये बन गया 0 और लास्ट में ये बन गया 1। यूज दिस वैल्यूज दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो बन गया हमारा A1 B1 ऑफ 1, A2 B2 ऑफ 0, A3 B3 ऑफ 0, A2 B1 ऑफ 0, A2 B2 ऑफ 1, A2 B3 ऑफ 0, then A3 B1 of 0, A3 B2 of 0, A3 B3 is 1. Now, when we multiply this, that equals to what? A1 B1 plus 0 into something 0 plus 0 into something 0 plus 0 into something 0 plus B1 A2 B2 into 1 A2 B2 plus 0 into something 0 plus 0 into something 0 plus 0 into something 0 और लास्ट में बचा हमारे पास दैट इक्वल्स टू व्हाट A3 B3 into 1 A3 B3। तो लास्ट में आंसर आएगा आपका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो किसी भी वेक्टर का दैट इज A बार डॉट B बार इज इक्वल टू व्हाट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। आप इसे प्रैक्टिकल अप्रोच में इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास वेक्टर प्रॉपर में दिए गए हो तो ये वेक्टर इज गिवन बाय A1I प्लस A2J प्लस A3K फुल फॉर्मेट में दिए गए हो तो आप यूज करेंगे ये वाली डेफिनेशन। अगर आपको वेक्टर दिया गया है इनडायरेक्ट फॉर्म में तो एंगल दिया जाए तो आप यूज करेंगे ये वाली डेफिनेशन दैट A बार डॉट B बार इक्वल्स टू व्हाट A मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर एंगल दिया जाए यूज दिस डेफिनेशन, अगर प्रॉपर वेक्टर दिया जाए तो यूज दिस डेफिनेशन। ध्यान देना है कि I से I को ही, J से J को ही और K से K को ही मल्टीपल होता है, बाकी जगह पे ये पूरा 0 होता है। नेक्स्ट में हमारे पास आना है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर दूसरी जगह पे प्रोजेक्ट होता है, मतलब उसी जगह पे समझो हमारा A बार है और ये हमारा B बार है। तो B बार इज ऑन A बार और दिस इज द एंगल थीटा। तो A बार इज ऑन B बार अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है डेफिनेशन प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार इस जगह पे ऐसा है तो यूज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। A बार ऑन B बार है तो A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। अगर B बार ऑन A बार है तो दैट इज अगेन A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है वही मैग्नीट्यूड उसकी डिवाइड करनी है अगर प्रोजेक्शन निकालना हो तो। ये वाले फार्मूले ध्यान देना है। यहाँ पे B बार ऑन B बार बोला है दैट इज व्हाट हम लेंगे नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। यहाँ पे ऑन A बार बोला है तो हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। यही वाला छोटा सा फॉर्मेट है, आपको समझना है, इससे हम एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आज हमने देखा दैट स्केलर प्रोडक्ट। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन स्केलर प्रोडक्ट और वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट बिकॉज we can use this dot between the two vectors
सो इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। और अब यहाँ पे देखोगे तो आंसर आता है हमारे पास सब स्केलर नंबर, बिकॉज दीज आर द स्केलर क्वांटिटी हैविंग एडिशन इज अगेन स्केलर। तो यहाँ पे आंसर भी स्केलर आने वाला है, सो इट इज कॉल्ड एज अगेन स्केलर वेक्टर ऑल्सो, स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो। सो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बेसिक कंडीशंस है दैट प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे तो कोलिनियर और परपेंडिकुलर, ये दो कंडीशन आपको समझनी है। यहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, और अगर एंगल 0 है तो डायरेक्टली किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट अगर लोगे तो 0 आता है। इससे हम डायरेक्टली एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो वहां पे आंसर 1 आ रहा है किसी भी वेक्टर का, दैट इज व्हाट दे आर कोलिनियर। तो हमने आज यहां तक पढ़ा है। फिलहाल के लिए स्केलर प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक ऑब्जर्वेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी है। इसी के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में हम एग्जाम्पल्स ऑन स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 10.3 हम अब डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।